Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम में मैं सबों से प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church. और यहोशमा उर्दू इक्लीसिया से आप सबों के सामने मैं सलाम पेश करता हूँ। This evening, before we worship and meditate on the Word of God, just let us pray and look unto the God. आज शाम को दुआ करके हम खुदा का कलाम मुताला करेंगे और दुआ करेंगे। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. Once again, we come to your feet, coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी हमद सना बजा लाते हैं और खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब हम पहुंचते हैं। Father, Lord, remember us, Lord, and strengthen us from your word. आसमानी बाप, हमें याद फरमाएं और आपके आसमानी कलाम से हमें मजबूत बनाएं। Father, speak with all of us, Lord, from thy word and help us to worship you in truth and in spirit. आसमानी बाप, आपके कलाम के जरिए से हम सबों से आप बात करें और आपके पाक रूह के जरिए से हम सबों से आप बात करें। Father, also we pray that, Lord, strengthen us, Lord, and hide us under your arms and cover us with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, आपसे ये भी हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें यीशुआ के खून में धोएं, पाक करें और आप हमें छिपा कर आप बात करें। Father, we also pray that, Lord, those who are watching online, speak with them also, Lord, and also, Lord, let your words, Lord, be kept on our mouths and speak, Lord. और खुदावंद, आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो भी ऑनलाइन भी हमसे जुड़कर कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद उन पर भी आपकी बरकतें बरसाएं और आपके कलाम के जरिए से हमसे भी, हम सबों से आप बात करें, हमारे मुंह में आपका कलाम रखें। Father, asking your mercies and grace upon us, Lord, committing ourselves unto your loving hands. With the humble heart we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबों के आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए ये छोटी सी दुआ हम अपने आप को खाकसर बनाते हुए हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. In the book of Hebrews, chapter 11, verses 32, इब्रानी की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 32 में the word of God in the 11th chapter is listing people of faith. यहाँ पे खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम यूं बयान करता है इस बाब में कि ईमानदारों का जिक्र यहाँ पे दिया गया है। There are many people here listed, and one of them is in the verse number 32 is called Samson. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है, लेकिन इनमें से एक इंसान है, एक आदमी है जो 32वें बाब में आता है, उसका नाम है समसोन। And about them, the word of God is telling us in verse number 33, और उनके बारे में आयत नंबर 33 में खुदा का कलाम फरमाता है, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। And also in the 34th verse, it is telling us that they quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of aliens. 34वीं आयत में पढ़ते हैं, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। These verses are speaking about all the heroes of the faith who are listed above. यहाँ पे जो ऊपर हीरोज ऑफ फेथ जिनको कहते हैं उनके बारे में ये बात, ये आयत लिखी गई है। And one word in the 34th verse is telling us that they were out of weakness were made strong. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन कमजोरी में जोरावर हुए। One of them
is the person Samson who was very weak in his life. और इनमें से एक नाम हमने देखा है और वो है समसोन, जो अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर इंसान साबित हुआ था। In my Sunday school, and when I'm learning songs about Samson, we used to learn about that Samson is a very mighty man. He is very strong man. जब मैंने संडे स्कूल पढ़ा तब उस वक्त मैंने सीखा था, और मैं जब बाइबल की पढ़ाई भी कर रहा था तब भी मैंने सीखा था कि समसोन एक बहुत जोरावर इंसान था। Physical strength and the works that he did may show that he was mighty man. और जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी जिस्मानी ताकत उसके पास थी और जो काम अजाइब व गराइब उसने दिखाए, वो सब हमें ये बताते हैं कि वो बहुत जोरावर इंसान था। But the word of God is telling us that out of weakness they were made strong. लेकिन खुदा का कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि वो लोग अपनी कमजोरी में जोरावर साबित हुए। So let us meditate three things from this life of Samson. तो हम समसोन की इस जिंदगी में से 3 बातें हम देखेंगे और उसके बाद खुदा की इबादत करेंगे। Who God is and was in the life of Samson and also in our lives. तो हम 3 बातों में से पहली बात ये देखते हैं कि खुदा कौन है, समसोन की जिंदगी में कौन है और हमारी जिंदगी में हमारा खुदा कौन है। 3 things we will see who God is in the life of Samson. समसोन की जिंदगी में खुदा कौन है करके हम 3 बातें देखेंगे। The life of Samson is written in the book of Judges from 13 to 16 chapters. खुजात की किताब में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में 13 to 16. 13 से लेकर 16 तक। So this 13th chapter is telling about Samson's before he was born. यहाँ पे 13वें बाब में हम समसोन की जिंदगी में ये पहलू देखते हैं जबकि वो तब तक पैदा ही नहीं हुआ था। The word of God is telling us that the parents of Samson before he was born were the people without child. यहाँ पे खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जब समसोन पैदा नहीं हुआ था तब तक उसके वालिदैन जो थे बच्चों के ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि वो लोग ना औलाद थे। Manoah and his wife was barren and bare not. मनोहा उसका बाप जो था और उसकी माँ बांझ माँ जो थी वो बच्चों की ख्वाहिश रखते थे। And the angel of the God came to that woman. तब औलाद की ख्वाहिश रखने वाले इन लोगों के पास, इन शौहर बीवी के पास ये खुदा का फरिश्ता आता है। In Judges chapter 13 verse number 3 we read, and the angel of Lord said unto her. हम पढ़ते हैं खुजात की किताब 13 की 3 में, और यहोवा के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उसे कहा, Behold, now thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. वो कहता है, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। And now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing, for lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. आयत नंबर 4 से, सो खबरदार मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सिर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। The wife of Manoah was barren and had no hope of children. मनोहा जो इंसान है यहाँ पे, उसकी
बीवी जो थी वो बांझ थी और नाउम्मीद थी कि बच्चे होंगे। And the angel of the Lord came unto her and said all these things about the child. और उस नाउम्मीद और नाऔलाद औरत के पास, बांझ औरत के पास खुदा का फरिश्ता आके ये सारी बातें कहता है। Son is going to be born with the purpose. हाँ, तेरा एक बेटा होगा, एक मकसद से वो पैदा होगा। God has a purpose about that son. उस बेटे के बारे में खुदा का एक मकसद है। What is that purpose? Was that to fulfill the God's will. वो मकसद क्या है? खुदा की मर्जी जो है वो पूरा करना है। The will of God at that time in the life of Samson was written in 5th verse in the last sentence. उन दिनों में समसोन की जिंदगी में खुदा का मकसद क्या था वो इस 5वीं आयत के आखिर में लिखा हुआ है। And he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। God has the purpose in Samson's life that he chosen him before he was born. खुदा को समसोन की जिंदगी को लेकर एक मकसद था और उस मकसद के वास्ते खुदा ने उसे उसकी पैदाइश से पहले ही चुना था। He chosen him to be a deliverer. उसे लोगों को छुड़ाने वाला या बचाने वाला काजी बनाकर उसे चुना था। What this verse tells us that God has the purpose in everyone's life. इस बात से हमें ये समझ में आती है कि खुदा को हर एक इंसान की जिंदगी को लेकर एक मकसद तो होता है। His purposes and plans are not after we were born but before we were born. उसके मकसद जो होते हैं या उसके ख्यालात जो होते हैं वो ख्यालात या मकसद हमारी पैदाइश के बाद में खुदा को नहीं सूझते, बल्कि हमारी पैदाइश से पहले ही खुदा उन बातों के मुताबिक हमें पैदा करता है। The word of God also telling about Jeremiah in Jeremiah, book of Jeremiah. और खुदा के कलाम में यिर्मयाह की किताब में हम और एक बात पढ़ते हैं, Chapter 1 verse number 5. इन्हीं बातों को हम और एक बार दोहरा के उस किताब में भी पढ़ते हैं और वो है यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 1 verses 4 and 5. और आयतें 4 और 5। Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. तब यहोवा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। Prophet Jeremiah was chosen by God before he was formed in the womb of his mother. यहाँ पे हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो हैं उनको खुदा ने उसके माँ के बतन में रहम में पैदा होने से पहला ही खुदा ने उसे जाना और उसे मुकर्रर किया। He was ordained as the prophet unto the nations before he was born. और जब तक वो पहले पैदा हुआ था, मतलब जब तक वो पैदा हुआ था उससे पहले ही खुदा ने उसे मखसूस किया कि कौमों के लिए नबी ठहरे। The word of God in Isaiah chapter 49 verse number 1 also says, और यशायाह की किताब 49वां बाब में हम पढ़ते हैं, chapter 49 verse number 1. 49 के आयत नंबर 1। Listen, O Israel, unto me, and hearken, ye people from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother hath he made mention of my name. 49 verse number 1 Isaiah. ए जजीरो मेरी सुनो, ए उम्मतो जो दूर हो कान लगाओ, यहोवा ने मुझे रहम ही से बुलाया, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया। These verses tells us that God has the purpose for everyone before he was born. और ये कलाम हमें, ये आयत हमें ये बताती है कि हमारी पैदाइश से पहले ही खुदा के लिए हमारी निस्बत ख्याल और मंसूबा रहते हैं।
And also in the New Testament, Apostle Paul is telling in Galatians chapter 1, और गलातियों की किताब बाब नंबर 1 में पौलुस रसूल बाब नंबर 1 में फरमाते हैं, Galatians chapter 1 verse number 5, गलातियों की किताब बाब नंबर sorry, 1, 15, Galatians chapter 1 verse number 15. गलातियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 15, But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace. लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया। God has a purpose for everyone in everyone's life. खुदा के पास हम सबों की जिंदगियों को लेकर एक मकसद होता है। God has a purpose in the life of Samson to be a deliverer in this world. समसोन की जिंदगी में भी खुदा के पास एक मकसद था कि वो लोगों को छुड़ाने वाला बने। And about Jeremiah, he ordained him as a prophet unto the nations. और यिर्मयाह को खुदा ने लोगों को या कौमों के लिए एक नबी ठहराया। Here in the word of God, Paul is telling us that God called him. Let us read once again. और एक बार पढ़ेंगे गलातियों की किताब 1:15, To proclaim the good news unto the Gentiles. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने पौलुस रसूल को इसलिए बुलाया ताकि वो खुदा की खुशखबरी लोगों तक या गैर कौमों तक पहुंचाए। In 16th verse we read, to reveal his son in me that I might preach him among the heathen. 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। Like that, God also has a purpose in every one of our lives. तो हम सबों की जिंदगियों में खुदा के लिए एक मकसद है। Ephesians chapter 1 verse number 4 tells us, इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. चुनांचे उसने हमको बिना ये आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बैब हों। The word of God tells us here in these verses, यहाँ पे इस आयत में खुदा का कलाम कहता है, God chosen us before the foundations of the earth. खुदा ने हमें इस दुनिया के पेशतर बिना ये आलम से पेशतर ही चुन लिया है। Before the foundation of the world, इस दुनिया की बुनियाद से पहले उसने हमें चुन लिया है। he chosen us to be holy and without blame before him. उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बैब हों। And also he chosen us to be his children by adoption. इतना ही नहीं बल्कि हमें अपने लेपालक बेटे बनाने के लिए भी खुदा ने हमें चुना। And also he chosen us according to the good pleasure of his will. इतना ही नहीं बल्कि हमें अपने नेक इरादे के मुवाफिक खुदा ने हमें चुना है। See how great our God is that he chosen us before the world. देखें खुदा हमारा कितना ही अजीम है कि उसने दुनिया से पेशतर ही बिनाए आलम से पेशतर ही उसने हमें चुना। As he chosen Samson and all others, he also chosen us in our Lord Jesus Christ in his precious love. जैसे उसने समसोन को चुना और बाकी ईमानदारों को चुना, उसी तरीके से खुदा ने हमें भी खुदावंद यीशु में बिनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया। And the second thing we see in the life of Samson was, और हम समसोन की जिंदगी में दूसरी बात ये देखते हैं, Samson was very weak person. कि वो बहुत कमजोर इंसान था। He was weak in emotionally weak person. वो जज्बाती तौर पर बहुत कमजोर था। He was morally weak person. वो मॉरली भी बहुत कमजोर था। And he was spiritually also weak person. और रूहानी तरीके से भी वो कमजोर इंसान था। What are his weaknesses? उसकी कमजोरियां क्या क्या हैं? He was a person with a lust after women. वो औरतों के पीछे बुरी आंखें डालते फिरता था।
He went after every woman his eyes pleased him. जो जिस औरत पर उसकी नजर पड़ती थी उसके पीछे वो भागता था। And also he was lack of self control. वो अपने अपने आप को काबू में रख नहीं सकता था। He got angry immediately for small reasons. छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़कता था। And he makes damage, big damages. और वो बड़ी बड़ी नुकसान कर देता था। And also he is careless about his calling. और खुदा का बुलावा जो उसके बारे में खुदा ने दिया था उसके बारे में वो गफलत शायरी करता था। The example of his carelessness about his calling is उसकी बुलावे के बारे में गफलत शायरी का एक मिसाल है। he was called or separated as Nazarene. उसको खुदा ने नजीर ठहराया था। But he neglected his call. लेकिन उसने क्या किया था? अपने बुलावे को नजरअंदाज किया था। As a Nazarite person, 3 things he should not do. एक नजीर होने के नाते उसे 3 चीजें नहीं करनी थीं। Number 1, he should not touch anything that comes up from the vine. पहली बात यह है कि जो भी मय का दरख्त होता है या अंगूर के दरख्त होता है उसकी जो भी चीज उसमें से निकल कर आती है उनको छूना मना था। But in the chapter 14, when he went to the Timnath, there he gave a feast with the wine only. और हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि वो खुजात की किताब 14वां बाब में हम पढ़ते हैं कि वो तिम्नात को जाता है और एक जियाफत मतलब वो कुछ दावत देता है और वहां पे वो मायनोशी मतलब उसको छूता है, वो करता है। Why we say that? In the verse number chapter 14 verse number 10 it says, क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाब नंबर 14 और आयत नंबर 10 में हम पढ़ते हैं, so his father went down unto the woman and Samson made there a feast. फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया, वहां समसोन ने बड़ी जियाफत की। This word in the original language gives the meaning of drinking. यहाँ जियाफत करके जो बात आई है ये असल जुबान में अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी जुबान में तो उसका मतलब होता है कि पीना। So he should be away from all the drinking and everything, but he gave the feast of drinking to in his wedding party. तो वो सब कुछ किया था लेकिन इस पार्टी में वो उसने मैनोशी भी की थी। And second thing, as a Nazarite person, he should not touch any dead body. और नजीर होने के नाते उसे और कुछ चीजों को, मुर्दा चीजों को छूना मना था। But he touched the dead body of lion. लेकिन उसने एक शेर बबर का डेड बॉडी छुआ था। And also when he killed 1,000 persons with the jaw of that donkey, he also that there he touched the dead body also. और जब उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से लोगों को मारा, उस वक्त उसने क्या किया था? मरे हुए मतलब लाश को छुआ था या मरी हुई जानवर की हड्डी को छुआ था। So like that he touched the dead bodies. इस तरीके से उसने लाशों को भी छुआ था। Not only that, इतना ही नहीं बल्कि he also married other than the Israelites. उसने इस्राएलियों को नहीं बल्कि गैर इस्राएलियों को चुनकर ब्याह किया था। And also finally he should not cut his hair, but he gave himself to cut his hair. और आखिरकार नजीर होने के नाते उसके सर पर खुदा ने कहा कि उस तरह ना फिरे लेकिन उस तरह फिरने दिया। These all are his weaknesses. ये सब के सब उसकी कमजोरियां थीं। He is a weak person like us. वो हम जैसे ही, हमारे जैसे ही कमजोर इंसान था। Yet God used him. फिर भी खुदा ने उसे मुस्तमिल रखा। Because he has the plan and he has the purpose in his life. क्योंकि खुदा का तो एक मकसद था जिस मकसद को वो समसोन की जिंदगी में पूरा करना चाहा। And God promised to the parents of the Samson that he will use him as a deliverer.
और खुदा ने समसोन के वालिदैन से ये भी कहा था और वादा किया था कि वो समसोन को लोगों को बचाने या छुड़ाने या फिलिस्तीयों के हाथ से रिहाई देने के लिए इस्तेमाल करेगा। According to his word and by his grace, God used Samson. खुदा के कलाम के मुताबिक जैसे खुदा ने अपना कलाम बख्शा था, वादा किया था, उस वादे के वास्ते खुदा ने तो समसोन को इस्तेमाल रखा था। Not because of the strength or not because of the perfectness in the Samson, God used him. समसोन की जिंदगी में जो उसकी ताकत और कुव्वत थी या उसकी जिंदगी में जो रास्तबाजी थी, उनको लेकर तो नहीं। And even in our lives also, तो हमारी जिंदगियों में भी the word of God telling us that खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है in Romans chapter 5, रोमियो की किताब बाब नंबर 5, let us turn our Bibles to the Romans chapter 5, रोमियो की किताब बाब नंबर 5 verse number 6. और आयत नंबर 6। For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। In the previous point, we learned that God chosen us before the foundation of the world. हमने इससे पहले सुना देखा कि बिनाए आलम से पेशतर ही खुदा ने हमें चुना था। Because God chosen us in our Lord Jesus Christ by His love, now when we were without strength, in due time our Lord Jesus Christ died for us for ungodly. क्योंकि खुदा ने बिनाए आलम से पेशतर ही हमें चुना था, खुदावंद यीशुआ ने भी ऐन वक्त पर हमें बचाने के लिए वो सलीब पर बेदीनों की खातिर मुआ। Here He commended His love toward us. और इसमें खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर किया है। Verse number 8 says that God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. इसीलिए 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। We were sinners, we were without strength, yet God chosen us and our Lord Jesus Christ died for us. हम तो गुनहगार थे, हम खुदा के करीब नहीं थे, फिर भी खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और हमें चुना और इसलिए खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते सलीब पर मुए। And God did not leave us there, और खुदा ने हमें वहां छोड़ नहीं दिया था, but He gave Holy Spirit for us. और उसके बाद खुदा ने हमारे वास्ते अपने पाक रूह को हमारे वास्ते भेजा। The Holy Spirit, the Word of God is telling us about the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse number 8. खुदा के कलाम में आमाल की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 8 में खुदा का कलाम रूहुल कुद्स के नाजिल के बारे में लिखा है, कहता है Ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Here once again the will of God is revealed for us. यहाँ पे खुदा का इरादा और उसकी मर्जी और एक बार हम पर जाहिर होता है। The purpose and the will of God is that we should be witnesses of our Lord Jesus Christ. खुदा का इरादा ये है कि हम हमारे खुदावंद यीशुआ के लिए जमीन की इंतहा तक गवाह रहें। But we were without strength, we are weak persons. लेकिन हम तो कमजोर लोग हैं, कुव्वत नहीं रखते हैं, We are sinners. हम तो गुनहगार थे। But Christ died for us लेकिन खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मसलूब मकतूल हुए to strengthen us. ताकि हमें फिर से मजबूत बनाए God gave us the Holy Spirit. और इस तरीके से हमें मजबूत बनाने के वास्ते खुदा ने अपना पाक रूह बख्शा। Holy Spirit came upon the church on the day of Pentecost. पेंतकोस्त के दिन उस रोज क्या हुआ था, खुदा का पाक रूह इस दुनिया में अपने इक्लीसिया पर नाजिल हुआ था। From that day to till the day that our Lord Jesus Christ, our Holy Spirit lives with us. और उस दिन से लेकर आज के रोज तक हमारे खुदा के पाक रूह उसके इक्लीसिया में हम में शामिल है, बसता है। And also as the Lord Jesus Christ said,
that Holy Spirit dwells in us. और जैसे हमारे खुदावंद यीशुआ ने फरमाया, रूहुल कुद्स हमारे अंदर बसता है। Holy Spirit is strengthening us who we are weak persons. रूहुल कुद्स ही हमको ताकत बख्शता है, हालांकि हम तो बहुत कमजोर लोग हैं। How great our God is. तो देखिए कि हमारा खुदा कितना ही अजीम है। And the third thing, और तीसरी बात, God answered the prayer of Samson. समसोन की दुआ जो है खुदा ने उसका जवाब दिया था। Whether Samson prayed every time sincerely or not, हम नहीं जानते कि समसोन हर बार बहुत नेक इरादे से दुआ मांगा या नहीं, but only one time he prayed very sincerely. लेकिन एक बार तो बहुत दिल की गहराई से उसने दुआ मांगी। That prayer came with repentance. और उस दुआ में हम देखते हैं कि उसने बहुत तौबे के साथ वो दुआ वो मांगता है And he surrendered himself unto God. और अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से खुदा का सुपुर्द कर देता है। Before that, his weakness destroyed him. लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उसकी कमजोरी ने उसको नेस्तो नाबूद कर चुका था। But after he was destroyed, he was fallen and he was blinded. लेकिन उसके अंजाम के माता है जब वो कमजोर हो गया और जब वो अंधा बन गया, And he came to the God with humbleness and with repentance. और उस वक्त वो खुदा के करीब आता है अपने आप को खाकसार बनाते हुए और बहुत तौबे के साथ वो खुदा के करीब आता है। We will read in Judges chapter 16 verse number 28 about his prayer. और खुजात की किताब 16 और 28 में हम उसकी दुआ के बारे में हम पढ़ते हैं। And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines of my two eyes. तब समसोन ने यहोवा से फरियाद की और कहा, ए मालिक यहोवा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदा, फक्त एक दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। The brokenness, repentance draws us near to the God. जब हम टूट जाएंगे और जब हम मन फिराएंगे तब हम खुदा के करीब पहुंचाए जाएंगे। Word of God is telling us in Psalms 34 verse number 18. मज़ामिर की किताब चैप्टर 34 और आयत नंबर 18 में हम पढ़ते हैं। Psalm 34 verse number 18. मज़ामिर की किताब चैप्टर 34 और आयत नंबर 18। The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. यहोवा शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। God is such a great God and loving God. He never rejects us when we repent and come with a broken heart. हमारा खुदा इतना मेहरबान है, इतना मोहब्बत वाला है कि जब हम खाकसार होकर मन फिराकर खुदा के पास आते हैं तो वो हमसे दूर नहीं होगा। See, even in the life of Peter also in the New Testament, नए अहदनामा में पतरस की जिंदगी अगर हम देखें, Matthew chapter 26, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 26 में, Peter also was a person with his weaknesses and denied Lord Jesus Christ. यहाँ हम देखते हैं कि पतरस भी एक आम फितरत का इंसान था और कमजोरियों से भरा हुआ शख्स था और खुदावंद यीशुआ को उसने इकरार नहीं किया था। Matthew chapter 26 verses 70 to 74 we'll read that Peter denied Lord Jesus Christ 3 times. और मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 26 70 से लेकर 74 तक अगर हम देखते हैं तो पतरस यहाँ तकरीबन तीन बार खुदावंद यीशुआ का इनकार करता है। But when he repented, लेकिन जब वो मन फिराया, in verse number 75 we read that, हम 75 आयत में पढ़ते हैं, and Peter remembered the word of Jesus which said unto him, before the cock crow thou shalt deny me thrice, and he went out and he wept bitterly.
पतरस को यीशुआ की वो बात याद आई जो उसने कही थी, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। God accepted Peter's repentance. खुदा ने क्या किया था? पतरस की तौबा, पतरस का तौबा जो था, मन फिराना जो था, उसे खुदा ने कबूल किया था। Not only that, he did not left him there. God did not left Peter there. और खुदा ने इतना ही नहीं बल्कि खुदा ने पतरस को वहां छोड़ दिया तो नहीं, but gave him great burden to take care after his sheep. लेकिन खुदा ने उसे बहुत बड़ा बोझ और काम सौंपा कि अपनी भेड़ों को चराए। In John chapter 21 verses 15 onwards we will read that. यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 21 21 की 15वीं आयत से लेकर हम इन बातों को पढ़ते हैं। He said that feed my lambs, feed my sheep. वो वहां कहता है, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, तू मेरे बर्रे चरा और तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी कर। Our God is such a great faithful God and righteous God. हमारा खुदा बहुत ही वफादार खुदा है और रास्तबाज भी है। Our God is loving God. हमारा खुदा जो है वो बहुत प्यारा खुदा है। The word of God in First John chapter 1 verse number 9 says, और खुदा का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9 में, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। Not only forgiven us and cleansed us, he also made us to show forth his righteousness. हमें मुआफ करना और हमें पाक बनाना ही नहीं बल्कि वो हमें रास्तबाज ठहराता है। The word of God tells us that in 1 Peter chapter 2 verse number 9. पहला पत्रस बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9 में हम पढ़ते हैं, But ye were a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। 3 things we learn in the life of Samson. समसोन की जिंदगी में तो हम 3 बातें सीखते हैं। God chosen him before he was born. खुदा ने उसे उसकी पैदाइश से पहले ही चुना। And also God chosen us before the world, foundation of the world. और दुनिया के पहले से ही, बिनाए आलम से पेशतर ही खुदा ने हमें चुना। And also about Samson, second thing is that even Samson was weak person, yet God used him mightily to fulfill his purposes. दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि समसोन बहुत कमजोर इंसान था, लेकिन खुदा ने उसे मुस्तमिल रखा, इस्तेमाल करते रहा कि अपने इरादों को, जब वो खुदा के पास मन फिरा के आए तो उसे फिर बहाल करके अपने इरादों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। In our lives also God commended his love, yet we were sinners and yet we were without strength, God chosen us. खुदा ने हम पर भी, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम कमजोर ही थे, तब खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पर जताते हुए हम जैसे गुनहगारों को, कमजोरों को खुदा ने चुना। And also the third thing in the life of Samson is that when he repented truly, God blessed him, answered his prayers and used him mightily than before. और तीसरी बात यह है कि जब समसोन अपनी जिंदगी के गुनाहों को लेकर जब मन फिराया, तब खुदा ने उसे फिर बहाल किया और इस्तेमाल किया। The word of God tells in Judges that when he prayed in the repentance, God gave him the victory and he killed people that he did not that much of people when he was before he was caught. और हम देखते हैं कि जब उसने
तौबा किया और सच्चे दिल से दुआ मांगकर मिन्नत की, तब खुदा ने उसे इतनी ताकत बख्शी कि जब वो बीना था, जब उसकी आंखों की रोशनी थी, उन दिनों में जितनों को उसने मारा था, उनसे भी ज्यादा लोगों को आखिरी वक्त में उसने मारा था। The same God who called us in our Lord Jesus Christ, when we confess our sins, He made us to show forth His praises unto the nations. इसी तरीके से हमारे खुदा ने भी हमको भी खुदावंद यीशुआ में जब हम मन फिरा के ईमान लाए, तब उसने हमको भी चुना ताकि हम भी लोगों के सामने खुदा की खूबी जाहिर करें और लोगों के कौमों के सामने हम भी जोरावर साबित हों। Because of these reasons, for our Lord's love upon us, let us worship this evening. तो हम जैसे कमजोरों पर हमारा खुदा की इस तरह के बड़े प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से आज शाम को हम उसकी इबादत करेंगे। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत दे।